أشهد أن لا إله إلا الله. حیاؤں کے محور وفاؤں کا منبع، وفا نے بھی جن کی وفاؤں کو مانا، زمین پہ کروڑوں عطائیں بٹی ہیں. اب کیا ہے؟ اب کفنانے کا عمل ہے. کفن کتنے کفن ہو اور کیسا ہو، یہ چیز تھا ذہن میں، کتنے کفن ہو اور کیسا ہو، رنگ وغیرہ. جی تو سب سے اول یتھے ایسی سران مکلو کرت پھر عطر لے لی جائے. ہاں مردس متعلق کر بگوڑ عرض، تو خوشبو لے لی جائے، اس کے سجدوں کی جگہ پہ لگائے جائے. یہ مسنون طریقہ ہے سجدے کی، جو یعنی یمن اعضاء پہ جن اعضاء پہ سجدہ ادا ہوتا ہے، مثلا پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، داڑھی مبارک تو داڑھی کو بھی لگاؤ ہے نا، یہ چہرے میں آ جاتے ہیں، داڑھی مبارک کو بھی کیا آپ لگا ریش ہو تو داڑھی کو بھی آپ عطر لگا سکتے ہیں. اسی طرح دونوں ہاتھوں میں، ٹھیک ہے، اس طرح دونوں قدموں میں آپ کیا سجدے کی جگہوں پر عطر لگانا کیا ہے، مسنون ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا ہو گئی یہ تو جب نہا کر ہم مکمل اس کو مطلب دھوئیں گے، غسل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. مسنون عمل ہے کہ سجدے کی جگہوں پر کیا لگائے آپ، عطر لگائے جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا یہاں تک. اب چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آج کفن کا متعلق جو ہے، سب سے اول کتنے کفن ہو، سب سے اول ہم حدیث کی طرف جائیں گے. میں ترجمہ کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی تین کپڑوں میں کفن دیا گیا. یمن کے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، جس میں نہ سلی ہوئی، نہ ازار یا قمیض، نہ سلی ہوئی قمیض تھی اور نہ امامہ تھا. نہ سلی ہوئی قمیض تھی نہ امامہ. مقربت عید کی اس طرح میں اس کی تفصیل کروں کہ کفن میں سلی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی. بڑا خوب یاد رکھیں گے، خوب یاد رکھیں گے، سیکھیں گے کہ کیا مسنون عمل کیا ہے، مسنون کفن کیا ہے. مردش ترپلو، مردس کش ترپلو، مرد کو 3 کپڑے ہیں، اس میں سے شریعت کی اصطلاح میں ان کو نام بھی دیا جاتا ہے. اگر سو ناو پر سنس کوشر سے اتفاق ہے، لیکن اس کرو کوشر پر سے ڈیپینڈ نہ، وہ شریعت کی اصطلاح میں ان کو نام رکھا جاتا ہے. مثلا مرد کو جو 3 کپڑے ہیں وہ کیا کیا ہیں جو شریعت کی اصطلاح میں ان کو نام رکھا جاتا ہے. سب سے اول اس کھسو بنائی، مطلب بوڑ چادر اس کل خود ہور تش آسان اور قدم خود بون تش اس تھف تش کران، اس کو کہیں گے چادر، یا کہیں گے چادر، یا کہیں گے لفافہ. کیا کہیں گے؟ کس پلو ونس مردش ترے پہلے جو لاسٹ میں ہوتا ہے، ہم اسی کے اعتبار سے چلیں گے. تو سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفافہ یا کہیں گے چادر. ٹھیک ہے، وہ سر سے بھی تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے اور قدموں سے بھی نیچے ہوتا ہے، یا سو گنڈ تش ایسے کران. دوسرے نمبر پر آئے گا ازار یا کہیں گے تہبند. کیا کہیں گے؟ ازار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، یا کہیں گے تہبند. ٹھیک ہے، وہ اس بڑی چادر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے پیشانی سے لے کر قدموں تک. وہ ہوتا ہے پیشانی سے لے کر یا ٹخنوں تک ہم کہہ سکتے ہیں، پیشانی سے لے کر ٹخنوں تک. کتنے کپڑے ہو گئے؟ 2. پہلا چادر یا لفافہ، دوسرا ازار یا تہبند. 2 نام ہیں اس کے جو آسانی ہو. تہبند ہم ایک نہیں تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے. پہلے کو کہیں گے چادر، دوسرے کو کہیں گے تہبند. کیا کہیں گے؟ کتنے کپڑے ہو گئے مرد کے؟ مسنون 2. تیسرے نمبر پر مرد کا جو کفن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے قمیص. کیا ہوتی ہے؟ اس کوشر سے تھی ازار تشورالان قمیص تشورالان. لیکن یہاں پر غلط فہمی کے شکار ہم ہو جاتے ہیں. اشفور ذہنس میں یہ قمیص کہ کوشر پڑتی ہے قمیص ونان. ہاں، یہاں پر بڑا دھیان رکھنا ہے. اور اسی طرح جو اس سے پہلے ازار ہے جس کو تہبند کہتے ہیں، کوشر سے زلان کیا یزار ونان. یہاں پر بھی بڑا خیال رکھنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے. شریعت کی اصطلاح میں جو ازار کہا گیا اس سے یہ ہمارا والا ازار مراد. ہاں، بڑا خوب یاد رکھیں گے جی، بڑا غلط فہمی کا آسان. اچھا، دوسرے نمبر پر جو قمیض شریعت کی اصطلاح میں مراد ہے وہ ہماری جیسی قمیض مراد نہیں ہوتی ہے. وہ صرف نام ہے ان کپڑوں کا، وہ صرف نام ہے ان. ہاں، بڑا دھیان رکھیں گے. تو وہ اس کفن میں کوئی سلائی نہیں ہے. ہاں، سنت کے مطابق کفن میں کوئی وہ آج کیا اس کے اندر اس قرآن رب غفور رحیم اس قرآن دینا الا ما قد سلف، جو گزر گیا. وہ تو کیا ہے لا علم میں اس امت سے الحرج مدفوع، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے حرج اٹھایا گیا ہے. یعنی یہ چیز اس میں انسان مسلمان حرج کیسے اس حرج کو معاف کیا گیا ہے. اس کیا اس بات کو کیا کور اس پنن امواتن سے اللہ تعالیٰ کے تم غریق رحمت وہ کوئی نہیں، جائز کے مرحلے میں وہ اجازت ہو گیا. البتہ وہ سنت کران کہ سنت مسنون کفن کیا چھو. ٹھیک ہے، تو سب سے مرد کے 3 مسنون کپڑے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. سب سے پہلے لفافہ، سب سے پہلے
दूसरे नंबर पर तहबंद, दूसरे नंबर पर तहबंद, तीसरे नंबर पर कमीज, ठीक है, वो इंशाल्लाह अमली तौर पर आपको दिखाया जाएगा। हो गई ये 2 बातें। ये मसनून 3 कपड़े हैं मर्द को। अगर बिलफर्ज कहीं जंगल में या किसी ऐसे कोई हालात हो 3 कपड़े मयसर न हो, मर्द को 2 कपड़ों में भी आप कफना सकते हैं, यानी कि जो बड़ी चादर, जिसको चादर कहते हैं, लिफाफा कहते हैं, दूसरे नंबर पर तहबंद। अगर 2 ही मयसर हो तो 2 में भी वो कफन अदा हो सकता है। अगर इससे ज्यादा मजबूरी है, कहीं मतलब सफर में हो या कहीं समुद्रों में सफर कर रहे हो, मतलब जहाज के खराब हो, मतलब बहुत सारे ऐसे मराहिल पेश आते हैं, मतलब आइंदा कमिस इल्मस में क्या हालात आ सकते हैं। अगर एक ही कपड़ा मयसर हो तो मजबूरी की हालत अलग है। मजबूरी की हालत यूं सो दीन के सख की ना तो इस समुद्र के जिस में जहाज में पकड़ना ताकि वो ट्रपल हो बराबर नहीं, शरीयत इस चीज की गुंजाइश दे रही है। अगर एक ही कपड़ा आपके पास मयसर है, एक ही कपड़े में उसको कफना कर उसको क्या करो, सुपर्दे खाक करो, ठीक है। तो खुलास क्या था, मर्दश मसनून सुन्नत कफन क्या है, लिफाफा, तहबंद और कमीज, ठीक है। अब ये रंग क्या आया, सफेद छा जरूरी, रंगीन ती हकवा लगित, एक सवाल है कि रंगीन लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है क्या सफेद ही जरूरी है या नहीं। इनका जवाब मैं अर्ज कर दूं आया किताबों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पसंदीदा कफन सफेद कपड़ा है, पसंदीदा कफन, हाँ, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े को पसंद फरमाया है। लिहाजा जिंदगी में भी उस इंसान जो सफेद पलो लगान फरिश्ते हो खुशबू हो लगान, हाँ, या वो वन कशर पर सोनु गोबर हो लगान, बहरहाल नबी ने तो यूं ही पसंद तो नहीं किया है, बहरहाल उसमें तो कोई है ना साहब। और जब फरिश्ते भी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते थे, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ अनान, बहुत सारी हदीस में पढ़ा भी, हमने सुना भी कि वो इंसान से शक्ल में उनको सफेद कपड़े जेबतन हुआ करती थी, तमन रंगीन तमन क्या उस पलो लगे। अगर जो इंसानी शक्ल में आते थे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो सारी वो हदीस जिब्राइल भी एक लंबी है, वो एक हदीस में है कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वो आप की जान मुबारक हाथ रखे, है ना, उसको हदीस जिब्राइल एक लंबी हदीस है। तो वो जब आए थे इंसानी शक्ल में तभी तो हाथ रखे थे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों पर, है ना, तो वो कौन से कपड़े लगा कर आते थे, सफेद कपड़े। तो लिहाजा पसंदीदा कि कौन सा रंग है, सफेद का। मर्दों के लिए खास है कि सफेद ही में क्या क्या दिया जाए। अगर रंगीन कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाए तो मकरूह है, मकरूह मानी को नापसंद, अदा तो हो जाएगा कफन तो अदा, लेकिन नापसंद आमुद करने के खतर मगर मर्दस खतर। अब रहा औरत का मसला। सबसे इससे पहले दूसरे नंबर पर पहले मैं औरत का कपड़ा अर्ज कर दूं कि औरत का मसनून कफन क्या है। औरत के थोड़ा सा डिफरेंट है। औरत के का मसनून कफन 5 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, 3 तो सेम वही है। सबसे पहले लिफाफा, दूसरे नंबर पर तहबंद, तीसरे नंबर पर कमीज। अब 2 अलावा है मस्तूरात को, सीना बंद गज गई 4, और होता है खिमार यानी चादर ओढ़नी। कितने हो गए? 5। तो 5 होते हैं औरत को, लिफाफा, तहबंद, कमीज, सीना बंद और खिमार। आयज 5। तो 5 कपड़ों में औरत को कफनाना मसनून और सुन्नत है, हदीसों से साबित है, और मर्द को 3 कपड़ों में कफनाना हदीसों से सुन्नत साबित है। ठीक से इसको आते हैं नंबर। तो औरतों की कफन की तरफ हम जरा जाएंगे। तो 5 कपड़े जब इसको आ गए, अब कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि पसंदीदा वही है सफेद कपड़ा, लेकिन अगर औरत को रंगीन कपड़ों में भी कफनाया जाए तो कोई हर्ज, उसके लिए ये रंगो जीनत वगैरह जायज शरीयत ने रखी है। जैसे कि जिंदगी में मर्द शुशुबान सफेद पान और सानी माजबन से रंगीन तिकारा इस्तेमाल, तो इस तरह मरने के बाद भी उनको गुंजाइश है। अगर रंगीन कपड़ों में कभी ये सीरियसली इश्यू नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार अगर कहीं ऐसे हालात या दे दिया किसी ने गब है रंगीन पलवन पली माजबन कफन ताकि मस बन है मिसाल कफन ही ना इकड़ी वापस, तो लिहाजा ये मसला याद रखिए। किताबों में इजाजत शरीयत ने इस चीज की गुंजाइश दे दी है, रंगीन कपड़ों में भी अपनी माँ बहन को हम कफना सकते हैं। सिर्फ उनका पर्दे का 5 कपड़ों का ख्याल रखना है। जिस तरह मर्द के कफन में अगर हालात या किसी वजह से 3 कपड़े मैसर ना हो तो 2 में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कफना सकते हैं। इसी तरह औरत के कफन में भी अगर बराबर 5 ना हो 4 में भी अदा हो सकता है, अगर 4 ना हो 3 में भी अदा हो सकता है। इसके बाद फिर मजबूरी का हुक्म वहां पर फिर मजबूरी के साथ हुक्म भी तब्दील हो जाता है, ताकि मजबूरी की हालत अलग होती है। तो खुलासा ये निकला कि कफन कितने हों और कैसे हों। कितने हों? मर्द के 3 और औरत के 5। कैसे हूं? सफेद पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी अपने मुर्दों को सफेद कपड़ों में कफनाया करो, सुन्नतों से साबित है और क्या है, पसंदीदा है। और कितने हैं औरत को? 5 कपड़े। और कैसे होने चाहिए? पसंदीदा सफेद है और रंगीन में भी उनको कफनाया जा सकता है। ठीक। और एक मसाइल इसमें मुतफर्रिक कुछ चंद मसाइल है। एक ये कि आब ज़मज़म से तर किया हुआ कफन क्या जायज है वो कफनाने में इस्तेमाल करने? जवाब है बिल्कुल जायज है।
तबर्रुकन जायज़ है। आप जमजम शुकाम बढ़ रही था वहाँ पन कफन, वो बिल्कुल उसमें कोई वो आब जमजम की बेहुरमती का बाइस नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं कर सकता है। और एक मसला कि कफन तैयार रखना बिल्कुल पसंदीदा अमल है। कफन पहले से तैयार रखना, मिसाल आप मैं गया कि चलो भाई मैं आज कफन अपना खरीद के रखूंगा, इसमें कोई हर्ज, पहले से जिंदगी में होश हवास हो कफन तैयार रख सकता है। अलबत्ता कब्र पहले से तैयार रखना मकरूह है, कब्र पहले से तैयार रखना मकरूह है, नापसंदीदा है। वो तो उस वक्त क्या पता, क्योंकि मौत का मुतय्यन ही नहीं है। अलबत्ता कफन तो मैं अपने पास रख सकता हूँ, अलबत्ता मरना इशू पता में ये कर मरब, हाँ, लिहाजा उससे पहले कौन जाए क्या जाए उसका किसी को इल्म नहीं है, लिहाजा कहते हैं कि कफन पहले से तैयार रखना उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कब्र पहले से तैयार नहीं रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों से मौत क्या रहती है, याद रहे, वो दाना है वो शख्स, और आमाल की तरफ ज़्यादा रगबत बढ़ती है जब क्या है, मौत याद रहती है। और लज्जतों को ख़त्म करने वाली क्या है, मौत है। और एक मसला है कि कभी की बार तबर्रुकन खाने काबा की गिलाफ का टुकड़ा भी रखा जाता है, किसमें, कफन में, बतौर तबर्रुक। इसका सवाल है कि रख सकते हैं या नहीं, जवाब है इसका रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि उसमें कोई आयत या कलिमा तो नहीं लिखा हुआ हो, आयत या कलिमा, क्योंकि खाना काबा की गिलाफ पर आयत और कलिमात लिखे हुए हैं ना, तो ये देखना है। या इसी तरह कफन भी वो इस्तेमाल करे जिसमें कोई आयत या कलिमा न लिखा हुआ हो। शायद देखा भी गया है बहुत सारी जगहों पे कि मतलब इस कफन पे वो लिखा जाता है कलिमा, है ना, कफन पे लिखा जाता है कलिमा या कोई आयत लिखी जाती है। ये बिल्कुल शरीयत से इसका कोई ताल्लुक, और उल्टा इसकी ये आयत और इन कलिमात का क्या है, बेअदबी है। ये दुरुस्त बात नहीं, इससे परहेज ही करना चाहिए। सादा बिल्कुल सिंपल जो कपड़ा हो उसको इस्तेमाल आप कफन में करें। अब सवाल है कि द्रुग गैसे आसुन कि न सस्त गैसे आसुन। तो रिवायतों में आया है कि भाई जिंदगी में इस इंसान का देखो, इसका रहन सहन क्या, जिस अंदाज से ये कपड़े पहनता था उसी अंदाज से उसी हैसियत से इसको क्या दे दिया करो, कफनाया करो। और आया है रिवायतों में कि ज्यादा कीमती भी मत, हाँ, कीमती मतलब कीमती कपड़ों से मत अपने मुर्दों को कफनाया मत करो। क्यों, वो खत्म होने वाला है ना, वो सड़ने वाला है, वो गलने वाला है। अब क्यों वो कीमती, इसमें जितनी सादगी हो उतनी अल्लाह को क्या है, पसंद है। बिल्कुल सादगी में, हाँ, बिल्कुल छली छुरा बाबा से चिन्ह बारगास में, है ना, इसमें क्या करेगी वो हटाती वो मतलब द्रुग लागो है ना, कीमती लगाना, इसमें क्या है, इसमें जितनी सादगी हो जितनी आजिजी हो ईश्वरा बस पसंद, ईश्वरा बस अरे मैं मिट्टी में मिल जाना होता है, क्या द्रुग लिबास लागना आसान, ठीक है। तो ये कफन के चंद मोटे मोटे मसाइल थे, तो ये अर्ज कर दिए, कुछ जो जहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाल दिए, और जो कुछ समाज इसमें से रुझान अब इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि किस तरह कफनाते हैं, ठीक है।